اب اپنے مائک سب بند کر دیجئے. ہاں السلام علیکم دوبارہ. یہ کیونکہ یہ والے جب بچوں کو وہ ہوگا ساری چیزیں ہم لوگ کل جو پڑھ چکے تھے جغرافیائی دریافتیں اور کنندگان، شاید اس کی آواز آپ کو نہیں آئی تھی، پھر تیزی کے ساتھ دہرا دیتی ہوں. صرف نام کے ساتھ مارکو پولو نے جو ہے کیا چین کو دریافت کیا تھا، بر اعظم چین، یورپ کو چین اور بر اعظم کے ایشیا دوسرے متعلق سے متعارف کروایا. ابن بطوطہ عربی سیاح تھا اور اس نے دیگر ممالک سے بہت سارے ممالک میں یہ گھومتا رہا. بھارت، مالدیپ، سماترا، چین، سارڈینا، مشرقی مغربی افریقہ جیسے ملکوں کے سیاحت کی. اور ابن بطوطہ قرون وسطیٰ میں کا سب سے مشہور سیاح تھا. ہنری دی نیویگیٹر، اس نے 2 جزیرے میڈرا اور ایزورس جو افریقی جزیرے تھے انہیں تلاش کیا تھا. پرتگالی تھا یہ. بارتھولوموڈائز یہ بھی پرتگالی تھا اور اس نے جو ہے کیپ ٹاؤن پر جہاں سے کہ کیپ ٹاؤن آف گڈ ہوپ جو جہاں سے سب لوگ واپس آتے تھے سارے سیاح، وہاں اس کو نام دیا تھا اس جگہ کو جو جنوبی افریقہ کا علاقہ تھا. کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو تلاش کرنے کی مہم پر یہ نکلا تھا 1453 میں. اور پھر اس نے جو ہے جس کو جو وہاں سے فریڈرینڈ نے وہاں سے بھجوایا تھا اس مہم پر بھارت کی کھوج کے لیے بھجوایا تھا، لیکن بھارت کی کھوج یہ نہ کرتے ہوئے یہ امریکہ کی طرف چلا گیا اور اس نے بر اعظم امریکہ تک یہ پہنچ گیا تھا. امریگو ویسپسی یہ جو ہے 1453 کے بعد، یعنی 53 میں کرسٹوفر کولمبس، 97 میں یہ اسپین سے کی جانب سے پہلی مہم تھی. ابھی تک پرتگالی کرتے آ رہے تھے، یہ پہلی مہم تھی اور یہ کہاں پر گیا تھا؟ اس نے امریکہ، اسی کے نام پر امریکہ کا نام رکھا گیا. یہ بھی انڈیا کھوجنے نکلا تھا اور امریکہ کو چلا گیا تھا. واسکو ڈی گاما یہ ہندوستان میں 1497 میں یہ واسکو ڈی گاما بھارت کی طرف آیا اور واسکو ڈی گاما کا یہ جو افریقہ کا کنارہ جو ہے جس کو کہتے ہیں راس آف دی گڈ ہوپ جو ہے، یہ جو راس امید کہا جاتا ہے، تو یہ کیپ آف دی گڈ ہوپ یہاں سے سب لوگ واپس آ جاتے تھے. لیکن یہ جو ہے یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد ممباسا جاتا ہے، ممباسا سے کالیکٹ پہ اترتا ہے، رستنائی بھارت آتا ہے. یہ بھی پرتگالی تھا. فریڈینڈ میکالن، ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ فریڈینڈ میکالن اسپین کا پہلا سیاح تھا اور سارے ممالک کی دوڑ شروع ہو گئی تھی نئے نئے جزیرے، نئی نئی مہمات پر نکلنے اور علاقوں کی کھوج لگانے، جسے دریافت کہتے ہیں. علاقے کھوج لگاتے تھے اور وہاں پر اپنی حکومت یہ قائم کر دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا منصوبہ تھا کہ فلپائن میں یہ مارا گیا تھا. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اسپین کے بادشاہ اس مہم کو دیا تھا انہیں کہ یہ جو ہے دنیا کے ملکوں کی سیر کرے اور جن علاقوں پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے وہاں پر وہ قبضہ کرے. ان کے ساتھی آگے بڑھ گئے. سیموئل دی شیمپلین فرانس میں پیدا ہوا اور شیمپلین نے امریکہ میں شمالی خطے تلاش کیے اور کینیڈا کے کیوبک شہر پہ اپنی بنیاد ڈال دی. ایبل جانسوا تھامسن یہ ہائی لینڈ اس نے دریافت کیا تھا 1644 میں. اور کیپٹن جیکس کوک، اس کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے ہیں جو آپ نے اسکرین اس میں سامنے آپ کے ڈسپلے پر ہے. یہ 2 رہ گئے تھے، ان دونوں کے بعد ہم پھر نیا ٹاپک شروع کریں گے اور انشاءاللہ آج چیپٹر ختم ہو جائے گا. کیپٹن جیمس کوک انگلینڈ کے شاہی بحری فوج سے تعلق رکھنے والے جیمس کوک نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا پر انگلینڈ کا پرچم لہرایا. اس نے بحر الکاہل کے جزائر کا جائزہ لیا اور نہایت درست نقشے تیار کیے. 3 سال میں کیپٹن کوک نے 60,000 نوٹیکل میل کا سفر طے کیا. یہ جو ہے کیپٹن جیمس، انہوں نے بھی ایک مہم بنائی تھی جس میں کہ سفر کتنا لمبا، دیکھیں سب سے بڑی چیز وہاں پر اس وقت سفر ہوا کرتی تھی، جس نے سفر کو بہت زیادہ اسموتھ اچھا بنایا. آج بھی نئے نئے جدید ٹیکنالوجی جو ایجاد ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کے لیے بہت سویدھا جنک اور بہت زیادہ آرام دہ پرتعیش اور بہت ہی زیادہ اچھا سفر گزرے. اسی کی کھوج میں انسان نے بحری راستوں کو تلاش کیا، سوتا ہوا 6 مہینے میں گزر کر وہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر انسان نے، آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں بہت چھوٹے جب سائنس پڑھتے تھے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ بیری جو مرض ہے، یہ مرض ان سیاحوں کو ہوتا ہے جو 6 مہینے بند چاول کے ڈبے کا کھانا کھاتے ہیں. پڑھا نا یہ جملہ؟ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اسکرین نہیں دکھائی دے رہی ہے بھی کیا؟ یہ ایک منٹ ایک بچے نے بول دیا، اب آپ مت بولیے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اسکرین جب بھی جیسے ہی وہ ہو جاتا ہے، کیا بہت کمزور ہو جاتا ہے نا نیٹ ورک، تو فوراً چلی جاتی ہے اسکرین. یہ اصل میں ڈیٹا بھی کرنا ہو رہا ہے اس کا اور ساتھ ساتھ وائی فائی بھی. اب دیکھیے اسکرین شیئر ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے. اب
क्या मसला है भाई स्क्रीन शेयर का? अब हुआ है? अच्छा ठीक है। हाँ देखिए, आप लोग अपने अपने वॉइस क्लिप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा, अदरवाइज तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कल पूरे स्क्रीन बराबर आ रहे थे। हाँ, तो फिर ये जो है इन्होंने क्या किया कि एक ऐसी मुहिम बनाई कि सफर को आरामदा कैसे बनाए। अभी आपने देखा होगा कि प्लेन नुमा बसें भी आ रही है जिसमें प्लेन की फैसिलिटीज जो है मौजूद होती हैं। फिर हमने प्लेन की सर्विसेज में देखा इतनी फैसिलिटीज होती है, यानी कि इंसान दुनिया के कोने कोने में पहुंचे भी और उसको कोई एहसास भी ना हो। ये इनकी मुहिम का हिस्सा होता है। तो कैप्टन जेम्स कुक ने कई टन लंबे सफर का एक प्लान तैयार किया था, नक्शा तैयार किया, और ये भी इस मुहिम की दरियाफ्त में दरियाफ्त कुनिंदगान, खोजी जिसे कहते हैं, खोजी दरियाफ्त कुनिंदगान, कभी बोलकर देखना इस लफ्ज को कि आप सही बोल पा रहे हैं कि दरियाफ्त कुनिंदगान यानी खोजी में, रास्ते तलाश करने में, खोजने में, ये भी एक शामिल हो गया। लुई एंटोनी दी बोगन विले विले लुई एंटोनी दी बोगन विले एक फ्रांसीसी सयाह था। वो बहरुल काहिल के पार करके ताहिती तक आन पहुंचा और इसने 1771 ईस्वी में अपने सफर की मुकम्मल मालूमात अपनी किताब वेलेजेस राउंड में उसने हासिल की थी और इस वर्ल्ड में बयान की। इस किताब में दर्ज मालूमात की बुनियाद पर 19वीं सदी में फ्रांस मिशनरी ताहिती पहुंची और इन्होंने इसके हिस्से में फ्रांसीसी नवाबादियात कायम की। बहरुल काहिल के एक जजीरे का नाम भी बोगनवेल है। देखिए, इन्होंने फ्रांसीसी नवाबादियात कायम की थी, यानी कि कहां पर की थी? इस इलाके पर, ताहिती नाम था इस इलाके का। कौन सा? बहरुल काहिल के पार करके ताहिती तक आन पहुंचा और 71 में ईस्वी सफर में अपने वेजेस राउंड दी वर्ल्ड में बयान किया है। इसने इसमें किताब लिखी दी वर्ल्ड, और उस किताब के अंदर इसने क्या लिखा कि ताहिती तक वो पहुंचा था और ताहिती तक पहुंचने में उसको कितनी दुश्वारियां आई थी, वो सारी चीजें उसमें लिखी है। और उसका इलाका जो उनका मिल गया था, ये भी अमेरिका ही के उसमें है, अमेरिका ही के साइड में ये वाला इलाका होगा जहां फ्रांसीसी आबादियात वहां पर बस गई थी। बहरुल काहिल के एक जजीरे का नाम है, इन्होंने बोगनवेल रखा उसका नाम, जजीरा बोगनवेल। कभी जाकर उसको सर्च करो, टापू कहते हैं जजीरे को, तो कभी जाकर सर्च करो तो पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने उस टापू पर फ्रांसीसी आबादियात कायम कर ली थी। फिर वो जजीरे भी अब खुद मुख्तार रियासतें बन गई। अमेरिका की कितनी नवाबादियात थी जो खुद मुख्तार रियासत बन गई बाद में? हाँ एग्जैक्टली, 13 नवाबादियात थी। और ये 13 नवाबादियात खुद मुख्तार रियासतें कब बनी? जब वहां पर, मतलब वहां से उन्होंने यूरोप से पूरे ताल्लुकात खत्म कर लिए, इस लिहाज से कि हम है यहाँ के बाशिंदे लेकिन हम हमारा अमेरिका का निजाम अलग चलाएंगे। अब आ जाते हैं सनती इनकलाब की तरफ। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है ना स्क्रीन शेयर? हाँ जी। चले अब ये देखिए। हाँ हाँ जी, ठीक है। सनती इनकलाब से मुराद दस्ती सनत से मशीनी सनत की जानिब होने वाली पेशरफ्त। देखिए, दस्ती सनत आपको मैंने कल बताया था कि चरखा हाथ से बुना जाता था। ऊन, पहले तो ऊन बनाने के लिए भेड़ों की खाल थी, उसको रोल करके रुई बनाया जाता था। रुई की तरह बनाकर फिर लंबी लंबी रस्सियां बनाई जाती, उसको शटल पे लगाया जाता था हाथ से, फिर हाथ ही के घुमा घुमा कर जो है शटल पे बुना जाता था, फिर हाथ ही से चरखा चलाकर कपड़ा बुना जाता था। या फिर आप उसके लिए मिट्टी से एक बर्तन का बनाना भी सनत है। घरेलू हाथ की सनतें हैं जो छोटी छोटी सनतें, सना कहते हैं। सनात किस लफ्ज से बना? सना से बना, स्वाद नून आइन, और सना के माना है बनाना। और सनती इनकलाब यानी कि बनाने का इनकलाब। जब इंसान खुद काम करता था तो उसकी एक लिमिट होती थी कि 15 मीटर जो कपड़ा वो दिन भर में बुन लेते हैं, 3 मीटर बुन लेते हैं। फैमिली के 12 मेंबर हैं, 18 मीटर बुन लेते हैं। और सनती काम ही की वजह से लोग क्या करते थे, अपने बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे ताकि सारे मददगार हों। 15-15, 20-20 बच्चे हुआ करते थे। 4-4 बीवियां, 6-6 बीवियां होती थी, उनके सारे बच्चे होते थे और सारे मिलकर, अभी ये सीन देखना है तो मालेगांव का सीन देख लीजिए, वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे होंगे, वो सारे मिलकर मददगार होंगे, हर एक एक दूसरे को हेल्प करेगा और चीजें बनती जाएगी। मिट्टी के बर्तन मुरादाबाद में बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। तो वहां के कारखाने में भी सारे मददगार सभी लोग होते हैं। तो जो ही इन लोगों ने
यूरोपीय इनकलाब में सनती इनकलाब बहुत अहमियत रखता है। एक तो होता है सुर्ख इनकलाब, एक होता है सफेद इनकलाब जो दूध का इनकलाब है, यानी कि डेयरी को इन्होंने प्रमोट किया। दूध के वो जानवर जो दूध देते थे उनको बढ़ाना, उनकी डेयरी से नई 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 चीजें बनाना, यानी कि पनीर बन रहा है, केक बन रहा है, क्रीम बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, उसमें डाला जा रहा है, खवा बन रहा है, दही बन रहा है, छाछ बन रही है। इस डेयरी प्रोडक्ट को बहुत बढ़ाया तो इसे सफेद इनकलाब कहते हैं। और ये वाला जो इनकलाब है ये सनती इनकलाब था। सनती इनकलाब में घर में बनने वाली हर वो चीज, आपको याद देखा होगा किसी जगह पर कि गेहूं की फटकार भी घर में होती थी, गेहूं धान में से निकाले जाते थे, दालों का छिलका उतारा घर में जाता था, औरतें पूरी काम हाथ से करती थी, कपड़ा हाथ से बुना जाता था, बर्तन हाथ से तैयार होते थे, बास्केटें घर में बनाई जाती थी, चटाइयां घर में बुनी जाती थी, झाड़ू घर में बुनी जाती थी। उसके अलावा स्टील के और लोहे के बर्तन में तो बचपन में ये भी देखे कि एक मोड़ वाला आता था जिसके पास हमने पूरा एल्युमिनियम का बर्तन दे दिया तो वो उसको मोल्ड करके हमारे ही घर के सामने बैठकर मोल्ड करके हाथ से एक मशीन जलाकर आग लगाकर जो है उसको पिघलाकर एक नया बर्तन बनाकर आपको देता था। बोलते थे कि गिरदा बिलन बना दीजिए, सुराही बना दीजिए, तो वो बनाकर दिया करता था और अपने ही बर्तन के मटेरियल से बनाता था। तो इस तरह से बहुत सारी सनतें थी। जब यूरोप ने इन चीजों को मशीनों से बनाना शुरू किया तो इसे कहते हैं सनती इनकलाब। यानी इंसान जहां 2 बर्तन बनाता था वहां 50 हजारों बर्तन बनने लगे, धड़ 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 कपड़ा बनने लगा मीटर पे, बहुत सारी मशीनों का, और बहुत सारे थान मार्केट में आ गए। और अब ये बताते हैं कि इंसान इस इनकलाब में इतना आगे है कि कुर्रे जमीन को कपड़े में अगर कोई लपेटना चाहे तो उसको कई परतें उसको लपेट सकता है, इतना कपड़ा इंसान बुन चुका है मशीनों से। समझे? इसको कहते हैं तस्खीर, मुसख्खर करना। अल्लाह ताला ने इतना मुसख्खर कर दिया हर चीज को कि इंसान जो है मतलब अल्लाह ताला की इस सलाहियतों के जरिए से इंसान क्या करता है, ताकि ये सलाहियतों के जरिए से उसको बरवे कार लाता है तो वो मिनटों का काम, बहुत तवील बरसों का काम मिनटों में कर लेता है। तो इतना कपड़ा इंसान बना सकता है कि कुर्रे अर्ज को लपेटा जा सके। तो गोया कि सनती इनकलाब इसे कहते हैं। अब समझ में आ गया? यानी कि देखिए इन सनती इनकलाब से मुराद दस्ती सनत से, यानी कि दस्त कहते हैं हाथ को, और हाथ की सनत से मशीनी सनत की जानिब होने वाली पेशरफ्त। ठीक है? दस्ती सनत से मशीनों के जानिब जो पेशरफ्त हुई, इंसान ने इंसानों के हाथ से बनाने के बजाय मशीनों के जहां शिफ्ट हो गया, उस पेशरफ्त को सनती इनकलाब कहते हैं। ये जुमला आपको याद हो जाना चाहिए। सनती इनकलाब से मुराद दस्ती सनत से मशीनों की सनत की तरफ इंसान की पेशरफ्त को सनती इनकलाब कहते हैं। 18वीं सदी और 19वीं सदी में यूरोप में भाप और आबी कुव्वत के इस्तेमाल करके पैदावारी अमल में मशीनों के इस्तेमाल, अभी कल हमने पढ़ा था इसमें इनकलाब में क्या पढ़ा था कि जहां पर वो मशीन बना रहे हैं कपड़ा बुनने की, तो सरकी बनाने, कपास के लिए बीज ऐसे बनाते हैं कि ज्यादा उगे, फिर फसल काटने की भी मशीन होती है, फसल को अलग अलग करने की भी मशीन होती है, खाम माल को डेवलप करने की भी मशीन होती है। तो ये सारे इनकलाब को मशीन इनकलाब कहते हैं। आगे समझ में कुछ नहीं पूछना? ठीक है। सनती इनकलाब वाक़ई होने के लिए सरमायादारी का फरोग बहुत जरूरी था। जाहिर है सरमायादारी का फरोग था। आप कोई काम कर रहे हैं, मशीन डाल रहे हैं, तो आपको पैसा चाहिए। सरमायाकारी कहते हैं पैसा लगाना। ठीक है? आप सरमायाकारी करेंगे, यानी कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, कितनी सरमायाकारी करोगे, यानी कि आप कितना पैसा लगाओगे। और सरमायादाराना निजाम उसी को कहते हैं, यानी पैसे लगाना। तो सरमायाकारी जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे अब आपने छोटा सा प्लांट लिया कोई, आपने कहा, मैंने कल ही एक तहरीर लिखा था कि भाई आज के जमाने में अब सर्दियां आ रही हैं, एड़ियां फटने लगेंगी। एक छोटा सा ये प्लांट है जो यूरोप में बहुत ज्यादा चल रहा है, और वो क्या है, एक बड़ा सा कांच का एक्वेरियम टाइप टब ले लेना, उसके अंदर एक ऑक्सीजन सिस्टम लगा देना, और उसके अंदर जो है बड़े टब के अतराफ में बेंचेस रख देना, और उसमें पैर को की चमड़ी खाने वाली मछलियां डाल देना। बहुत छोटे सरमायाकारी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस सरमायाकारी के प्रोजेक्ट में अगर आप मॉल में जाकर मछलियों को पैर खिलाएंगे, कभी किया तजुर्बा ऐसा? हाँ हाँ, पैर डुबाकर आप, हाँ पैर, अच्छा ठीक है, बंद कर दीजिए। पैर डुबाकर आप बैठ जाएंगे तो मछलियां आती है और आपके पूरे डेड सेल जो एड़ी पे लगे होते हैं वो पूरे खा लेती हैं, और बल्कि नाखून के अंदर के भी सब मैल निकाल देती है और पूरा खा लेती है। 15 मिनट के अंदर आप पैर बाहर निकालिए, आपका पैर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, उस पर कोई डेड सेल नहीं होगा और चमकने लगेगा। ठीक है? तो अब ये वाले प्रोजेक्ट में मछलियां कितने की होगी? 2-3 हजार की मछलियां होगी, और टब का सिस्टम अगर आपने ले लिया तो 20 हजार तक, 10 हजार तक सारा आ जाएगा।
اور آپ ہر بندہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے پیر دھلائیے اور پیر دھلانے کے بعد مچھلیوں میں ڈال کر بیٹھ جائیے. پیسے لگے ہی نہیں, کچھ نہیں لگیں گے. اور وہ بندہ ہم لوگ جا کر جو مال میں کیا 500 روپیہ انہوں نے پیر ڈالنے کے لیے 15 منٹ, تو آپ 100 روپے لیجیے. ایک نہیں 50 عورتیں آئیں گی, بیٹھ جائیں گی, پیر صاف ہو جائیں گے, کلین ہو جائیں گے, چلے جائیں گے, 1 مہینے تک پیر کو دیکھنا بھی نہیں پڑتا. تو اس طرح سے آپ 100 روپے میں کریے, صبح سے شام تک تانتا لگ جائے گا. ایک سرمایہ کاری. لیکن آپ نے چھوٹے صنعت میں, چھوٹی صنعتیں آپ نے سنا ہوگا, یعنی کہ آپ نے 1 لاکھ سے بزنس شروع کیا, تو یہ سرمایہ کاری کا فروغ نہایت ضروری تھا. یعنی کہ سرمایہ کاری کرنا کیسے, اب یہ شیئر مارکیٹ ہوتا ہے. اب یہ چھوٹی باتوں کی مثال میں نے آپ کو دی. بڑے مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, شیئر مارکیٹ ہوتا ہے. آپ سرمایہ لگاتے ہیں. آپ نے کیا کیا, ایک کمپنی ہے, ایک کمپنی کے 12 شیئرز ہیں, 12 شیئرز میں سے آپ ایک شیئر ہولڈر ہیں, فلاں ایک شیئر ہولڈر ہے, سب مل کے پیسے ڈالیں گے اور وہ کمپنی سے جو مال آئے گا بکے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, بس آپ کو نفع مل جائے گا. اس طرح کی سرمایہ کاری کا ایک نظام انہوں نے بنایا, کا فروغ نہایت ضروری تھا. سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں صنعتوں کی ملکیت یا صنعتوں میں سرمایہ کاری کے لیے ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس کے پاس سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ موجود تھا. ٹھیک ہے, ایسے ایسے لوگ تھے جو بادشاہوں کے دور کے تھے, جن کے پاس بہت سارا پیسہ تھا, جو چالاک تھے, ذہین تھے. آپ کہیں گے کہ بھئی جو ذہین ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور بزنس کر کے وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اب اتنا بڑا مال دیکھیں آپ نے, شاپنگ مال کس کا ہے, ذرا اس کے اونر کا نام بتائیں مجھے کوئی. پروزون مال کس کے باپ کی جاگیر ہے, کس کا ہے, پتا ہے آپ کو کس کا ہے؟ شاپنگ مال پروزون کس کا ہے, اس کا مالک کون ہے, کبھی سوچا کرو بھائی. آپ لوگ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا, کس کا ہے شاپنگ مال؟ کسی ایک کا نہیں ہے, اس میں سرمایہ کاری ہے بہت لوگوں کی. ہاں سرمایہ کاری ہے اس میں بہت لوگوں کی. اس کو بنانے پہ جتنا خرچ آیا اس میں کسی ایک بندے کا پیسہ نہیں ہے. ہاں نہیں پتا نا, ہاں تو امبانی کا کچھ پیسہ ہے, رتک روشن کا پیسہ ہے, ایسے ہالی ووڈ کے لوگوں کا پیسہ ہے, کئی لوگوں کا پیسہ ہے, کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں شیئرز ہوں گے اس کے, جس میں اس کے سرمایہ کاری کی گئی ہوں گی, اور ایک ایک ارب کا ہوگا اس میں, کروڑوں اربوں کا ہوگا وہ شیئر. اس میں پارکنگ کا پیسہ اتنے حصے میں تقسیم ہوگا, جس کا جتنا شیئر ہوگا اس کے اتنا حصے تقسیم ہوگا. پارٹنرشپ تو ایک بہت چھوٹا ورڈ ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے. ہاں پارٹنرشپ تو کہتے ہیں, لیکن سرمایہ کاری کرنے کے لیے آپ پارٹنرشپ سے زیادہ بڑھ کر اٹھیں, جیسا کہ ہاں سن لیا, میں نے سن لیا. پارٹنرشپس تو ہے, پارٹنر تو ہیں اس کے, لیکن سرمایہ کاری کرنے کے لیے جو ہر پارٹنرز ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے, سمجھے آپ, اسے شیئرز کہتے ہیں. یعنی کہ پروزون مال کے اس میں کتنے لوگوں نے شیئرز لگائے, اتنے لوگوں کا شیئرز ہوں گے, پارٹنرشپ ہوگی. ٹھیک ہے, پھر وہ الگ الگ پتا چلے گا کون کتنے پرسنٹ کا پارٹنر ہے, ان کے پیسوں کے لحاظ سے رہے گا, ان کا منافع بھی اتنا ہی تقسیم ہوگا سب لوگوں کو. ٹھیک ہے, اس کے ڈیولپمنٹ کے اخراجات بھی تقسیم ہوں گے ہر ایک کو. اور جتنے زیادہ, تو اب سرمایہ کاری کے لوگ جو ہے, جس کے پاس سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ موجود تھا, تو لوگوں کو درکار اشیاء کم سے کم قیمت میں کرنا تھا. اب ظاہر ہے کہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمپنیاں کام کرتی ہیں, بیچنے والے بیچتے ہیں. اب آپ ایم وے کی مثال لو, ایم وے نے پورے باغات خریدا, اس میں چیزیں اگاتا ہے, اس سے پروڈکٹ بناتا ہے, اس میں کاسمیٹکس بناتا ہے, اس میں گھر کی چیزیں, گروسری وغیرہ کی چیزیں بناتا ہے, وہ آپ تک پہنچاتا ہے. ایسے ہربل لائف ہے, ایسے ہی مشروم ہے, ایسے ڈی ایکسن کے بہت سارے پروڈکٹس آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایم وے آتا ہے, اور ابھی تو مارکیٹ میں نئی سرمایہ کاری نکل گئی ہے. ٹپر ویئر کا تھوڑے دن پہلے بزنس ہوا, تو یہ بڑے بڑے پلانٹس کے ذریعے سے بزنس, ایک ہوم ٹو ہوم پہنچانے والے بزنس چل رہے ہیں انسان کی سہولت کے لیے. لیکن آٹومیٹیکلی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, اگر آپ سوچیں تو پہلے آپ کی امی دادی پھوپھی جو ہے ایک برقع پہن کر پوری زندگی نکال دیا کرتی تھی, اور بہت مشکل سے دوسرا برقع لیتی تھی. ہمارے پاس ہم ایک برقع دوسرے کی دکان لگا رہے ہیں, تیسرے کی دکان. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں تو آپ اپنے مائک بند, آپ آپ کے مائک بند کریں گے تو ریپیٹ نہیں ہوں گی نا, آپ مائک بند کر دیجئے. کر دیے بند؟ ہاں اب سنیں, اب نہیں ریپیٹ ہو رہی ہے. تو جب جیسے ہی, ہاں جب بھی اب بند کر دیجئے آپ فوراً. جیسے ہی ہم لوگ ایک چیز کے ساتھ, ایک چیز کے بجائے کیا کریں گے, بہت سارے مطلب بہت سارے اشیاء استعمال کریں گے. ابھی میں نے کہا آپ کے گھر میں پہلے ایک قالین آتا تھا,
पूरी जिंदगी निकल जाती थी लेकिन कालीन बदला नहीं जाता था। अब हालत ये है कि कालीन पे कालीन आ रहे हैं, 2 साल में एक फेंक देते हैं, दूसरा आता है, नया आता है। फिर इंसान चेंजेस करना चाह रहा है। फिर उसके अलावा ये कि हम बुरखे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले दादी नानी 1 ही 2 बुरखे में पूरी जिंदगी निकालते थे। इस तरह हमने क्या किया कि हम वो चीजें जिसको मजीद इस्तेमाल कर सकते थे, हम 2-2 साल में फेंक कर नए 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 ले रहे हैं। अब नए लेने वो कपड़े जो आपको छोटे हो जाते हैं, फिर भी अलमारियां फुल भरी होती हैं, खूब कपड़े ले लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपना पैसा निकाल कर इन कंपनी के मालिक और शेयर होल्डरान को और इनके कमर्शियल होल्डरान को सारा पैसा अपने जेब का उनको दे रहे हैं। ठीक है, और हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। वो नए नए बुरकों के डिजाइन लेकर आएंगे। इंसान ने जरूरियात से ज्यादा खर्च करना सीख लिया। ये सरमायादाराना पूरा एक निजाम है और ये निजाम क्या करता है, इंसानों को से क़नाअत पसंदी, किफायत शारी सब छीन लेता है। मतलब हम क्या करते थे पहले कि किफायत शारी से काम करते थे, हाथ खींच कर पैसा जरूरत के वक्त के लिए पसंदाज करते थे, ये सब खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या करते हैं, हम खर्च करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। तसल्ली हो जाती है अगर हम शॉपिंग करके आए, ऐसे ही होता है। सुकून मिलता है कि अल्लाह बहुत दिन से शॉपिंग नहीं करे, थोड़े से पैसे आ गए, चलो शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं। और हम लोग पागलों की तरह शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही, डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था शायद भी। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अब्बू का फोन आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी मैं 1 मिनट में उसको ज्वाइन हुई हूँ, अभी फिर से स्लाइड शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है, देखिए तो इस तरह से सरमायादारी जो क्या करती है, सरमायादाराना निज़ाम क्या करता है इंसान को, सनती इनकलाब में वाक़ई उन्हें सरमायादारा लगाने की ज़रूरत पेश आई और एक ऐसा तबका वजूद में आया जिसके पास सरमाया खूब था, उन्होंने सरमायाकारी की। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? लोगों को दरकार अशिया कम से कम कीमत में तैयार करना, इन अशिया की कीमतें, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक। एक कोई बोल दीजिए कि मैं बात करूंगी, कोई सदफ या कोई और बच्ची या फिर क्या नाम है इनका, नगमा, एक ही बच्ची जो होस्ट है। होस्ट कौन है? होस्ट होस्ट कौन है? हाँ, तो नगमा आप ही जवाब दीजिए, बाकी कोई नहीं खोलना जो मैं पूछूं, ठीक है? हाँ, कम से कम कीमत में तैयार करना, इन अशिया की कीमतें कम रखने के लिए मेहनत कशों और मजदूरों को कम उजरत देना और ज्यादा से ज्यादा नफा कमाना, ये सरमायादाराना माशी निजाम की खुसूसियात थी। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक एक कोई चीज लेकर आते हैं, बड़ी खूबसूरत सी चीज लेकर आते हैं, या फिर हमने क्या किया, एक बहुत अच्छा सा डब्बा लिया, ठीक है, बहुत खूबसूरत। उस डब्बे को की पैकिंग को हमने खोला, अंदर पुट्ठे का डब्बा निकला। उस पैकिंग को हमने खोला, फिर अंदर एक पुट्ठे का डब्बा निकला। फिर सब खाली डब्बे एक के बाद निकलते गए और अंदर जाकर कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, ये सरमायादाराना निजाम ऐसे ही है कि एक बड़ा सरमायादार पैसे लगाता है, चीजें बहुत बनाता है, आपको ख्वाब दिखाता है, ऐड दिखाता है, आप मर मर के जाकर लेते हैं, अपना कीमती पैसा उनके जेब में चला जाता है, चीज अपने पास आती है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो 5,000 का 6,000 का फ्रॉक लेकर आए, अलमारी में टंगा दिया, फिर एक मरतबा शादी में पहन के आप बड़े अच्छे लग रहे थे, लोगों ने आपको कहा बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप सेकंड वाले टाइम में उसको पहना, थर्ड टाइम में आपका दिल भी नहीं चाहा इसको पहनना, नया फैशन आ गया था, नया आपने लेकर आया, अब 5,000 आपके लटक रहे हैं। इमेजिन करो कि 5,000 के नोट आपकी अलमारी में लटक रही है, ठीक है, और वो लटक लटक कर आपकी नोट इतनी खराब हो गई है कि वो टूटने खस्ता हाल हो गई। अब उसके बाद अम्मी उठाते, साइज छोटा बड़ा हो गया, अम्मी उठा के किसी गरीब बच्चे को दे देते हैं। आप सोचो वो 5,000 रुपया आपका जमा रहता,
وہ जमा रहने के बाद आप उससे कोई गोल्ड की रिंग खरीद, वो 5,000 रुपए में मजीद 5 बढ़ाते, गोल्ड की रिंग खरीद लेते, फिर वो आपकी रिंग आपके हाथ में आप पहनते, लोग समझते हैं आपने सोना पहना हुआ है, फिर उस सोने के ऊपर आप 100-200 रुपए जो ज़कात होती है वो किसी गरीब को खर्च करके देते, और वो सोने की रिंग आपकी होती। अब्बू की परेशानी चल रही है, आप तोड़ते और वो पैसा उनके इस्तेमाल में देते। अगर परेशानी नहीं चल रही है तो वो पैसा जमा होता, आपके मजीद सोना बढ़ता और फिर हालत ये होती कि आप खुद सरमायाकारी यानी छोटा बिजनेस शुरू करने के काबिल बन जाते। ये चीज आजकल बच्चों को समझाई नहीं जा रही है। हमने ये हालत ऐसी ही है इस निजाम की, हमारे पास थोड़े पैसे आए, हम सोचते हैं शॉपिंग कर लेंगे, शॉपिंग करके कपड़े ला लेंगे, बच्चों के कपड़े खराब हो गए ये ले आएंगे, शूज खराब हो गए ले आएंगे, पर्दे खराब हो गए ये ले आएंगे। तो जो बड़े सरमायादार होते हैं इनका काम है आपको बेवकूफ बनाना, वो आपको बेवकूफ बनाते चले जा रहे हैं और हम बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। हमारे पास पहले अगर अपने अम्मी अब्बू सामने बैठो उनसे पूछो, एक पेन या एक पेंसिल होती थी जो निकाल कर अलमारी में से दी जाती थी। हमारे घर तो ऐसे ही होता था, एक बॉक्स आता था उसमें से पेंसिल देते थे और पेंसिल खत्म होकर अम्मी बोलते थे पूरा छोटा टुकड़ा दिखाओ हमको, उसके बाद एक नई पेंसिल आपको मिलेंगी। रूम में से बाहर निकलो तो लाइट ऑफ करो, आपका ये सब चीजें, बिजली ना जलाओ, ज्यादा निकल के जिनकी आदत अच्छी हुई तो उसको हफ्ते के वक्त खाने के टेबल पे अब्बू कहा करते थे ये बच्ची मेरी सबसे अच्छी है जिसने लाइट को हमेशा बंद रखा, छोटा लाइट जलाया, बिजली को बचाया। ये तस्वुर हमने खत्म कर दिया। हम बस क्या कर रहे हैं, टीवी में देखिए लाइटें सारे शुरू, पूरे घर के पर्दे बहुत अच्छे लग रहे, ये पर्दे ले आएंगे, ये कालीन ले आएंगे। तो हमने क्या किया कि इस सरमाए को, जो पैसा हमारा अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल बन सकता था, उस पैसे को हमने ऐसे ही फजूलियात में आग लगा दिया और हम समझ ही नहीं रहे। भाई अगर आप देखो तो बड़े बड़े सरमायाकार हैं जो हमें लूट रहे हैं, सारे इंसानों को। अभी हाल यही किया उन्होंने, हर बंदे को खाने को पैसे नहीं है लेकिन हर बच्चा मोबाइल लेकर आया, हर बच्चे ने मोबाइल खरीदा क्योंकि तालीम हासिल करना है। झांसा दिया इन लोगों ने, झूठा झांसा, तालीम हासिल करना है, तालीम हासिल करने के लिए जरूरी है कि मोबाइल हो पास में और उसके साथ साथ ये कि इंटरनेट पर क्लासेस हो, घर में लोग पेंडेमिक में बच्चे रहे, इतने लोग बाहर घूम रहे, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तालीम का निजाम सब ठप पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं सरमायादारों का, क्योंकि इन्होंने 5G जो है, एक बहुत बड़ा 5G जो इंटरनेट नेट सर्विस है, ये नेटवर्क फैलाना है, तो उसके लिए उनके पास उतने डिवाइस चाहिए, वो उतने डिवाइस बना लिए कंपनी ने, अब उतने डिवाइस को पार लगाएंगे, सब इंसानों के हाथ में थमा देंगे। इंसान इनकी बला से बर्बाद होते हैं, बर्बाद हो जाए, इनकी बला से मर जाते हैं, मर जाए, इनको अपनी सरमायाकारी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। यही बात तारीख की इस किताब में भी कहा जा रहा है कि ये माशी निजाम है जिसमें इंसानों की, मजदूरों को उजरत कम दो। देखिए गौर करिए, आपने कितने रुपए का डेटा करवाया, मैंने 2,000 रुपए का डेटा करवाया 2 साल का, इसमें पैकेज। आपने कितना करवाया, यहाँ मौजूद पूरी लड़कियां हैं, 500-500 रुपए का, 300-300 रुपए का डेटा करवाया, ठीक है। लेकिन ये 200-300 रुपये ही अगर कमाना हो तो आपके भाई को सारा दिन किसी दुकान पे खड़े रह के प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ठीक है। आपके अब्बू को जाना हो तो मजदूरी करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कंपनी में जॉब है तो वो आराम से कमा लेंगे, लेकिन वो भी बड़ी मेहनत से कमाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, उजरत कम दो, एक लिमिट तय कर दी इन्होंने। टीचर को पढ़ाने वाले को इतना पैसा, बस एक लिमिट है। एक कंपनी में काम करने वाले को इतना पैसा, जिसमें खाली बच्चे पल सकते हैं, उसके घर बार पल सकता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत हाई क्वालिटी की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बड़ा बंगला अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बड़े बंगले पर हक जो है सिर्फ सरमायादार का है, बड़ी गाड़ी पर हक सिर्फ उसी का है, दूसरा गरीब कुछ नहीं कर सकता। पूरा ये जो निजाम है सरमायादाराना निजाम, यही निजाम माशी निजाम में निजी मिल्कियत, मालिकीन को मुख्तलिफ अशिया की पैदावार और उनकी कीमतों का तयन करने, नेज नफा की शरह तय करने की आजादी और सारिफ को अपनी मतलूबा अशिया का इंतखाब करने की आजादी जैसे उमूर शामिल होते हैं। सरमायादार निजाम में क्या है, देखिए कितना अच्छा इन्होंने कहा जुमला कि इसमें निजी, आपको इस बात का हक है कि आप क्या चीज खरीदें, आपको हक है कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए, कौन सी पैदावार करनी चाहिए, क्या कमाना चाहिए। ये हक तो दिया उन्होंने, लेकिन ये हक नहीं दिया कि आपने कितनी बचत करनी चाहिए, ठीक है। ये आप समझिए इस नुक्ते को कि आपने बचत कितनी करनी चाहिए, कितना पैसा जमा करना चाहिए। पहले जमाने में घरों में औरतों के पास हजारों लाखों का सोना होता था, इतने बड़े बड़े चीजें होती थी जो कभी तोड़ी नहीं जाती थी, और वो सोना जो है उस पर ज़कात दी जाती थी, और वो सोना एक बड़ा सरमाया होता था जो शोहर के काम में आता था, घर के मर्दों की परेशानी में काम आता था। अब इमिटेशन ज्वेलरी की वजह से सारे कंसेप्ट ये खत्म हो गए। अगरचे के दिखने में सरमायादार निजाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये गिफ्ट पैक डब्बा है। एक डब्बा खोले तो अंदर कुछ नहीं निकला, मतलब एक बड़ा डब्बा खोलेंगे तो आपके पैसे छोटे हो गए, आपको बिल्कुल वो दिखेंगे, और आखिर खोलते खोलते अंदर के डब्बे में खाली डब्बा रहेगा,
इंसान जब दुनिया छोड़ता है तो उसने बहुत अच्छा जी लिया, तायुशात की हर चीज इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसके पास वो प्लॉट, वो जागीरें, वो विरासत, वो कुछ भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सब फैमिली ने पूरे मिलके ऐश कर लिया। तो अब ये जो है सरमायादारन से हटकर बात थी, ये सारी चीजें सरमायादारन निजाम की। इंग्लैंड में सनती इनकलाब के लिए माहौल नहायत साजगार और मुआफिक था। यहाँ लोहे की मादनियात और कोयले के जखायर बड़ी तादाद में मौजूद थे। मरतूब आब हवा ये बता रहे हैं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सरमायादारान निजाम की तरफ गए, यूरोपियन। अब यहाँ पर सनती इनकलाब के लिए माहौल साजगार था, क्योंकि इन्होंने मशीनें बना ली थी। इन्होंने लोहे की मादनियात, हम पहले भी देखे, मादनियात और कोयले के जखायर बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो इन्होंने इसे पिघलाने का फन सीख लिया। इसे पिघलाया और पिघलाने के बाद उससे क्या हासिल हुआ? खाम कोयले से इंजन जलने लगा, और जब इन्होंने एक मशीन बनाई तो कपड़े बनने की मशीन बना ली। लिहाजा इंग्लैंड में सूती कपड़ों की सनत ने नहायत तरक्की हासिल की। इंग्लैंड के कब्जे में नौ आबादियात का बड़ा वसी इलाका था। अब जो नौ आबादियात में पहुंच रहे थे, जहां पर जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन्होंने 2 जजीरे फतह कर लिए थे, फिर हमने पढ़ा उसके बाद कि 2 जजीरों के बाद इन्होंने जिसको अफ्रीका को फतह कर लिया, फिर हमने देखा न्यूजीलैंड को ले लिया। अब न्यूजीलैंड के लोगों के पास में इंडियन कपड़े का से उनको क्या इलाका भला? तो इंडिया का कपड़ा, कपास यहाँ से यूरोप जाती थी, इंग्लैंड जाती, इंग्लैंड के मशीनों पर कपड़ा बनता था, फिर वो कपड़ा वहां से वो लोग जाकर कौन कौन से जगह पर बेचा करते थे, मतलब न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में, और वहां पर जो मौजूद है अमेरिका में, यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनको ये लोग कपड़ा वगैरह बेचा करते थे। अब ये देखो, खाम माल किसका, मजे तैयार किसने किया और मजे कौन लूटा? तैयार उसको मजदूर ने किया, तैयार उसको मजदूरों ने किया। मजदूरों को कम तनख्वाह और कम उजरत देना इनका उसूल है, और अभी भी इन्होंने हमको जॉब 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 का एक जहर भर दिया। जॉब जॉब करो, जॉब करो। हर फर्द सोचता है जॉब करो, आराम से तनख्वाह मिलती है, 5 घंटे जॉब करो, आराम से तनख्वाह मिलती है। जबकि जिस बंदे को अल्लाह ने आराम से तनख्वाह मिलती है, वो बंदा बिजनेस करे तो इससे ज्यादा खतरनाक पैसा कमा सकता है, सरमायादार बन सकता है। लेकिन चूंकि कोई बने ना, इन्होंने ऐसा निजाम बनाया। तालीमी निजाम भी हमें क्या सिखा रहा है? अब पूरे जो नौजवान लड़के हैं इनको पॉलिटेक्निक 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 में डाला जाता है। पॉलिटेक्निक क्या है? लेबर वर्ल्ड। लेबर वर्ल्ड किसे कहते हैं? लेबर वर्ल्ड कहते हैं गुलाम, जो कि गुलामी करेंगे। अब हमारे जैसे जो एशियाई ममालिक हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए और नेपाल वगैरह को लीजिए, तो इन ममालिक के अंदर क्या होता है? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक क्या करेंगे? पॉली करके ये लोग इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग करके कितने भी हाई इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन कंपनी ईजाद नहीं करेंगे, कंपनी नहीं बनाएंगे। ये कोई चीज ईजाद नहीं कर रहे, कंपनी नहीं बना रहे। हमारे इसका हर एक बंदा जो है वो कंपनियों में काम करेगा। मॉल के अंदर देखो, सरमायादारों का पैसा लगा हुआ है, ऋतिक रोशन का पैसा लगा हुआ है, शाहरुख खान का पैसा लगा हुआ है, मैंने सुना है इसमें, और अंबानी का पैसा लगा हुआ है। कहाँ पे? शॉपिंग मॉल में। लेकिन शॉपिंग मॉल में काम कौन कर रहा है? लड़के। कहाँ के लड़के? हमारे औरंगाबाद के लड़के। तो ये है सरमायादार निजाम, कि जिसमें जो काम करता है वो कम पैसे पाएगा, और जो सारा नफा होगा वो पूरी पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां या मालिक, उसके मालिकान लेकर चले जाएंगे। लेकिन जिसकी असल मेहनत है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत कम कि वो रोटी खा सके बस। ये मॉडर्न गुलामी है। तो ये इन्होंने इस तरह से तेजी के साथ पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया। इंग्लैंड के लिए नौ आबादियात इलाकों से कच्चा माल बड़े पैमाने पर दरामद करना निहायत आसान था। बहरी कुव्वत के बलबूते पर इस कच्चे माल को तैयार शुदा माल में तब्दील करके दोबारा, अंग्रेजी समझा चुकी हूँ मैं आपको कि किस तरह वो खाम माल ले जाते थे और कपड़ा बनाते थे। मैंने आपको बताया कि कपड़ा रंगने के लिए इनको बहुत बड़ा, आपने पढ़ा होगा तारीख में, गांधी जी का बहुत बड़ा आंदोलन था नील की काश्त पर। दर्पण ड्रामा था उसका, जो इस ड्रामे के जरिए कहा गया था कि देखो किसान नील की काश्त ना करो। इनका सिस्टम कैसे होता था? वो क्या करते? सबसे पहले उनकी कीमतें, जो किसान की कीमतें हैं माल की, वो कम लगाते मार्केट में, पूरे मार्केट के अंदर रोक देते कि भाई कीमत कम लगे। यही हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदियों ने भी किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा निजाम ने दिया। सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो ये जो निजाम था यहूदियों के पास भी था कि वो बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, मजदूरों की उजरत कम देते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ही दूसरा बाजार डाला था, और दूसरे बाजार के अंदर ये तय किया था कि हमारा प्रोडक्ट हम ही इस्तेमाल करें, और हमारी चीजों को हम बेचें, हम ही खरीदें, हमारे ही लोगों से खरीदें। और फिर इस तरह से एक निजाम उन्होंने बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही गांधी जी ने भी उस वक्त कहा था कि स्वदेशी माल, अपने माल को इस्तेमाल करो। और किसानों को उस दर्पण ड्रामे में नसीहत की गई थी कि देखो कि नील की काश्त मत करो। नील की काश्त करने से क्या होता था कि वो झांसा देते थे, हम तुम्हें बहुत दुगना तिगना पैसा देंगे। किसान झांसे में आ जाते थे
اور پانڈیچری کے علاقے میں نیل کی کاشت کی وجہ سے اتنے غریب ہو گئے تھے وہ کہ لاغر ان کے پیٹ جا کر پسلیوں کو چپک گئے تھے اور بھوک مری سے وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے. کیسے جب انہوں نے نیل کے بیج لا کر دیے ان کو بونے کے لیے کہا اور 5 سال تک زمین بنجر ہو جایا کرتی تھی. اب اس بنجر زمین پر کسان نہ کپاس اگا سکتا نہ کچھ اور, تو 1 سال وہ زیادہ پیسہ لیتا تھا اور اس زیادہ پیسے سے خوشی خوشی انگلینڈ کا بنا ہوا کپڑا خریدتا تھا اور پھر 4 سال تک فاقہ کشی کی نوبت آتی تھی. پھر حالت یہ ہوتی تھی کہ اس کے پاس فصل اچھی نہیں آتی تھی, تو فصل اچھی نہیں آئی کسی کسان کے پاس, تو وہ کہتا تھا کہ اس کو پیسے لگانا ہے کھیت کو, میری فصل کو کھیت کو میں اگر دوائیں پیسٹی سائڈ یعنی کہ دوائیں وغیرہ مارکیٹ میں پورے انگلینڈ سے اتر جاتی تھی. بیچارہ کسان کیڑا مار دواؤں سے, کیڑے بھی یہی چھوڑتے تھے, بلکہ ایک گھاس بھی مجھ کو میرے خسر نے بتایا تھا کہ یہ وہ گھاس ہے جو زمین کی قوت کو کھینچ لیتی ہے اور فصلیں برباد کر دیتی ہے. اس گھاس کے بیج کو بھی انگریزوں نے لا کر ڈالا تھا. یہ یہاں پر جو ہے اس کو اڑ گھاس کہتے ہیں, اور یہ جب فصل کے بیچ میں اگ جاتی ہے تو اس کو اکھاڑنا پڑتا ہے بہت طاقت سے, اور یہ زمین کی پوری قوت لے لیتی ہے اور فصلیں اس کے نیچے دب جاتی ہیں. تو اس گھاس کو بھی ڈالا تھا اور آج تک یہ ختم نہیں ہوئی ہے. آج تک کسان اس کو اس کو مزدور لگا کر کھنچواتا ہے پورے, اور کھنچوانے کے بعد پھینکتا ہے, پھر اس کے جو پولینیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے بیج اڑتے ہیں اور دوبارہ پھر وہ آتی ہے. تو یہ اس قسم سے ان لوگوں کی تیاریاں تھی کہ انہوں نے کیا کیا, کسان کو ایسے پریشان کیا, کسان بیچارہ دوا کیڑے مارنے کی دوا لینے کے لیے مجبور ہو گیا. تو کیڑے مار کی دوا اس نے چھڑکا ان سے خریدا, تو اس کے اتنی مہنگی دوائیں اس کو ملی, اور اس کا سب پورا سسٹم جو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا اتنا مہنگا ملا کہ اس نے پھر کیا کیا, اپنے کھیت کے کاغذات کو گروی رکھا سرمایہ دار کے پاس, سے پیسہ اٹھایا اور دوائیں خریدا, یہ سوچ کر کہ فصل اچھی آ جائے گی تو ادا کر دوں گا. لیکن فصل پھر بھی ایسی آئی کہ وہ ادا ہی نہیں کر سکا, کیونکہ مارکیٹ میں وہ 50 روپے کی کپاس لے کر آیا, تب تک انگریز اس کی قیمت 100 روپے کر چکے تھے. اب بیچارے وہ گروی رکھے ہوئے کاغذات تھے, وہ کاغذات کی قرض ہو گیا, اس کے بعد پھر دے نہیں سکا. پھر اوپر سے ٹیکس اس کے اوپر اتنا لگا دیا گیا, لگان اتنی لگا دی گئی, اتنا ٹیکس لگا دیا گیا کہ وہ ٹیکس ادا کرنے کی اس کی طاقت نہیں رہی. پھر اس سے پوچھا گیا, اس کے دوسرے سال آیا, دوسرے سال کا تمہارے پاس اتنے ایکڑ کھیت ہے, اس ایکڑ کھیت کے اوپر تمہیں اتنا ٹیکس دینا ہوگا اور اتنی فصل اگانی ہوگی. کسان کے پاس پچھلے سال قرض لے کر اس نے کھیت اگایا تھا, اس سال بھی قرض لے کر کھیت اگایا اور ٹیکس بھرنے کے لیے بھی قرض دیا. یہ تو گنتی شمار میں ہی نہیں کہ بیچارے کی جو زمین جو اس کے نام پر ہے وہ بھی گروی ہے, اتنے برے حال کو ہے, لیکن زمین کی تعداد دیکھ کر ٹیکس لگا دیا گیا. اب وہ ٹیکس بھی پے کرنے کے لیے قرض لیا, یہ بھی قرض لیا. آخر سرمایہ دار جس کے پاس اس نے سود سے پیسے لے کر وہ اپنے کھیت رکھے تھے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارا قرض ادا نہیں ہو سکتا, تمہارا کھیت میرا ہوا, میں لے لوں گا اسے, اور جو کھیت کے باقی وہ ہے میرے کھیت میں مزدوری کرو, یعنی اسی کا کھیت, کسان کا ہی کھیت ہے جو اس نے لے لیا سرمایہ دار نے, اس میں تم مزدوری کرو تو پھر تمہارا قرض ادا ہوگا. پہلے قرض کے چکروی میں پھنسایا, اور یہی سسٹم سرمایہ داروں کا آج بھی ہے. آپ کو جھانسا دیتے ہیں, آپ گاڑی اٹھا لیجئے لون پر, آپ گاڑی اٹھاتے ہیں, آپ کا قیمتی پیسہ سود کے ساتھ بھرتے ہیں, گاڑی کی قسط ادا کرتے ہیں, اور آپ کے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے, اور آپ کیا ہوتے ہیں, کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ جمع ہی نہیں کر پاتے. جمع کرنے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے. جس دن آپ کی گاڑی کا پیسہ ادا ہوتا ہے اس دن پتا چلتا ہے آپ کے مارکیٹ میں گاڑی 1,00,000 کی 50,000 کی لیو بھی گاڑی 10,000 کی ہے بکنے کی قیمت. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کٹ گیا, سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی ہوتا, انسان مزید قرض میں پھنستا چلا جاتا. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. گھریلو صنعتیں زوال پذیر ہو گئی. اب ظاہر ہے جو لوگوں کے پاس میں ابھی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ کپڑے لے کر آتے ہیں آج کل, تو وہ کپڑے ایک مرتبہ صرف میں ڈال کر دھو لیا تو اس کا کپڑے کا پورا رنگ اڑ جاتا ہے اور دل کو نہیں لگتا یہ کپڑا کہیں اور پہننے کے قابل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا نا. کیوں ہوتا؟ کبھی غور کیا ایسے کیوں ہوتا کہ ہمارا ایک دھونے میں کپڑا خراب کیوں ہو جاتا؟ کبھی غور کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کیا کرو. تدبر, اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات میں تفکر کرو, تدبر کرو. اس لیے ہوتا کہ جو صرف ہے وہ صرف بنایا ہی اس کوالٹی کے ساتھ, اس اسٹف کے ساتھ گیا کہ وہ کپڑے کو ڈل کر دے. مہنگے سے مہنگا ترین ڈٹرجنٹ جو ہے وہ کپڑے کو ڈل کر دے گا. جب وہ کپڑے کو ڈل کر دے گا تو ظاہر ہے انسان دوسرا کپڑا خریدے گا. صرف بنانے والی بھی کمپنی اور کپڑا بنانے والی بھی کمپنی. آپ نے کام والی سے بچنے کے لیے واشنگ مشین لائی ہے, واشنگ مشین بھی یہ حال کر دیتا ہے کہ پورے کپڑے بدرنگ ہو جاتے. آپ ہر فنکشن میں پہننے کے لیے نیا کپڑا خریدتے. وہ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے مشین بنانے والی بھی کمپنی, صرف بنانے والی بھی کمپنی اور کپڑا بنانے والی بھی کمپنی, سب انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. پھر گھریلو صنعتیں بالکل وہی, یہی کپڑا گھر میں پوچھو کبھی, یہ کپڑا اتنی مرتبہ پہن کر بھی اچھا رہا کرتا تھا, پھٹنے تک اس کا کلر خراب نہیں ہوتا.
क्योंकि डिटर्जेंट वैसे थे। फिर देखिए माशी पॉलिसी भारत से ज्यादा इंग्लैंड के लिए फायदेमंद होने लगी, यानी कि भारत तो गुलाम ही हो गया था। इस सनअती इनकलाब ने भारत पर नहायत दूर रस असरात मुरतब किए, आज तक हम उस जाल से नहीं निकल सके। घरेलू सनतें जवाल पजीर हो गई, भारत के कपड़ा साजी की सनतों को गहन लग गया। हुकूमत की माशी पॉलिसी भारत से ज्यादा इंग्लैंड के लिए फायदेमंद हुई। रेलवे के इस्तेमाल की वजह से यूरोपीय ममालिक का तैयार शुदा माल भारत के दूर दराज देहातों तक पहुंचना भी आसान हो गया। ये वाकयात भारत की माशी इस्तेसाल का सबब बने। मतलब हम क्या हुए, माशी तौर पे कमजोर हुए, हमें गुलाम बना लिया गया और हमें पता ही नहीं चला। आज भी इतने अच्छे से हमको तालीम के नाम पर गुलाम और नौकर बना लिया जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। हालत ये बना दी कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल आता है और फिर वो गुलाम बनता चला जाता है। स्कूली निसाब उसको गुलाम बना देता है। तो हमको इन सब चीजों पर सोचना चाहिए कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या बेहतर कर रहे हैं। सनती इनकलाब के बाद यूरोप में माशी कौम परस्ती का मुतारुफ हुई। माशी कौम परस्ती के नजरिए के तहत अपने मुल्क की माशी तरक्की को तरजीह देने के साथ साथ मुकाबिल मुल्क की माशी नाकाबंदी करना भी जरूरी हो गया। मुकाबिल मुल्क की तिजारत पर माशी पाबंदियां आयद करने के लिए मुख्तलिफ रास्तों और तरीकों पर गौर फिक्र होने लगा। माशी कौम परस्ती में दरामदात और बरामदात पर पाबंदी, दूसरे मुल्कों में आने वाले माल पर बेतहाशा टैक्स, जैसा कि दूसरे मुल्कों से आएगा। ये माशी कौम परस्ती, यानी कि एक तस्वुर चलने लगा कि हमारी कौम यानी कि हम इंडियन कौम अपना कपड़ा इस्तेमाल करें, अपना ही पहने, बाहर वालों का महंगा होगा और हम जो कमाएंगे वो महंगा कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अपना ही माल खरीदेंगे। लेकिन लोगों का क्रेज होता है बाहर के कपड़े में, बाहर का माल, बाहर का, अभी भी कितने शौक से बाहर का बुरखा है, दुबई का बुरखा है, यहाँ का बुरखा है। यार तुम्हारा जो जहां भी बाहर की चीज है वो तुम्हारे मुल्क को कमजोर कर रही है। तुम्हारा मकामी जो भी होगा वो तुम्हें तकवीयत देगा, में वो अपने मुल्क को तरक्की देने का एहसास खुद पैदा होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर हमारी नस्लों को रहना है। फकीर हालत में छोड़ेंगे तो हम ही छोड़ेंगे और यहीं रहना है। हमको दुबई का बुरखा तो अच्छा लगता है, लेकिन दुबई वाले हमको 4 पैसे देने वाले नहीं है हमारी नस्लों को। हमको जमीन, अपना हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट, अपनी चीजों का इस्तेमाल, अपने ही लोगों का फायदा, ये सोचना, ये कौम परस्ती है। और इस तस्वुर को बहुत तेजी से फैलाने की कोशिश की गई। बाहर से आने वालों पर टैक्स लगाया गया, ये हमने आजादी हासिल करने के लिए की थी, ठीक है। उसके बाद आखिरी है ये स्लाइड कि पाबंदी, दूसरे मुल्क से आने वाले माल पर बेतहाशा टैक्स, जहां जहां मुकाबिल मुल्क गैर मुल्की। जब ये तस्वुर कि हम गुलाम हो गए, ये एहसास पैदा हुआ तो हमारे मुस्लिहीन मैदान में उतरे। उन्होंने लोगों में कौम परस्ती पैदा की कि हम अपने हिंदुस्तान की चीजों को प्रमोट करें, अपने ही लोगों में रहें, अपने ही लोगों का फायदा पहुंचाएं। स्वदेशी माल की मुहिम चलाई गई और दूसरे मुल्कों के माल का बायकाट किया गया। इस तरह उनकी कमर तोड़ी गई और फिर वो कमजोर हो गए। और कमजोर होने के बाद ये हालत हुई कि फिर लोगों में एहसास पैदा हुआ और हमने आजादी हासिल की। फिर इंतहा पसंदाना कौम परस्ती, सनतकारी, नस्ली बरतरी का तस्वुर, जारहाना मिजाज की वजह से साम्राज्य मजीद ताकतवर होता चला गया। इसी वजह से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी जैसे कई ममालिक ने कई लाख मुरब्बा मील के इलाके में अपने साम्राज्य में जोड़ लिए। अगले सबक में हम यूरोपीय नवाबादियात और इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म होता है और इसी के साथ जो भी सनअती इनकलाब से मुताल्लिक जो चीजें आपको पूछनी है आप पूछ सकते हैं। और ये जो है इन्होंने इसमें बताया पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम के बारे में कि जब ये इंसान में शऊर पैदा हुआ आजादी का कि हम गुलाम हैं। ये भी पता नहीं, ये शऊर बहुत दिन पहले मुझ में पैदा हो गया कि भाई हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करा रहे हैं या फिर मतलब हम बच्चों को पॉलिटेक्निक करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, आजाद बिजनेस नहीं करवा रहे, गोया कि हम कंपनियों के गुलाम बना रहे हैं। मॉल में अपने बच्चे काम कर रहे हैं, कंपनियों के गुलाम बन रहे हैं। कब वो दिन आएगा कि जब हम अपने ही प्रोडक्ट, अपने ही तहकीकात होगी, हमारी मशीनें होंगी, हमारे बच्चे बनाएंगे, हमारी कंपनियां होंगी, हमारा कपड़ा बनेगा। हालत तो अभी ये है मौजूदा हुकूमत में कि हमारी जो कंपनियां थोड़ी बहुत थी वो भी बंद हो गई। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम उठें। जब हम पूरे कौम मिलकर उठते हैं, खड़े होते हैं, तो तब जाकर हम तारीख मुरतब करते हैं। इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ। नेक्स्ट में जो भी पूछना है आप पूछिए। अल्लाह हाफिज।